Good morning, all of you. Good morning. How are you? And welcome back to Mathematics YouTube channel. And today we are going to start the exercise 10.1 straight line and question number 9 to 14. We will discuss one by one. So firstly, we discuss some previous concept which are very useful in these questions. So due to that, firstly we store these things. First, slope, and you know slope. So पहले अब slope को जान लो क्या है slope of a line, फिर हम question करेंगे because these are basically based on the slope of a line. So slope means y2 minus y1 upon x2 minus x1, where point x1 y1 and q x2 y2 lies on line segment PQ. In that case, slope equal to difference of y coordinate upon difference of x coordinate. Second things, lines are parallel, then their slope will be equal. यदि दो लाइंस पैरेलल है तो उसके स्लोप आपको इक्वल होगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे. इफ टू लाइंस आर पैरेलल then its slope is equal. Second, lines are perpendicular, then m1 m2 equal to minus 1. You should memorize these things. These are very useful. And fourth, suppose करो angle between two lines L1 and L2 are two lines and their angle between this. So in that case, tan theta equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. आपको इतना चीज याद रखना है. इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 to 14 एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस हैं. अब इसमें tan थीटा आपका हो गया m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. आप लिख लीजिए इसे दिस. अब m1 क्या है? m1 is the slope of this line and m2 is the slope of line second. ये आपका स्लोप है फर्स्ट का, ये स्लोप है सेकेंड का. इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पे, वन बाय वन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 टू दिस. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखोगे. अब आप चलो इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 आपका क्वेश्चन नंबर 9 टू 14 आज हम डिस्कस करना है. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 is, without using distance formula, आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना है. so that the points -2, -1, 4, 0 and 3, 3 and -3, 2 are the vertices of parallelogram. ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन आप समझो. ऐसे दिखाना होता पैरेललोग्राम, you can use the distance formula and you know opposite sides are equal in parallelogram and diagonals are not equal. On that basis आप प्रूफ कर सकते थे, बट स्पेशली मेंशन है इसमें
कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप देखो इसे कैसे आप करेंगे, राइट डाउन। पहले आप सॉल्यूशन लिखिए इसका। हेयर गिवन पॉइंट्स डिनोटेड बाय a -2 -1, b 4, 0, c 3, 3 and d -3, 2। आप इससे एक रफली पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर लो इसे। A, B, C and D। What the coordinate of A? A is -2 -1, B is 4, 0 and C is 3, 3 and D is -3, 2। अब देख लो आप इसे, हमें प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है but without using the distance formula. So in that case, because parallelogram is the rectilinear figure and it formed by the lines, so first of all this line is parallel to this line. If it is parallelogram तो क्या होगा आपका AB और CD के दोनों पैरेलल्स होंगे and BC and AD are parallel. तो slope of AB should be equal to slope of CD and slope of BC should be equal to slope of AD. यदि ऐसा होता है तो इससे दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। तो आप स्लोप के बेसिस पे आप इसे प्रूफ करेंगे। तो आप क्वेश्चन लिख लिया आपने, क्लियर है क्वेश्चन। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव टू प्रूव कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो आप निकालो। सो स्लोप ऑफ ए बी क्या लिखेंगे, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 0 and here minus of -1 upon 4x2 minus x1. This is equal to 1 upon 6. So it is a slope of AB. आपका स्लोप ऑफ AB आ गया। अब आप निकालो स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ CD क्या होगा आप देखो, सेम y2 minus y1 upon x2 minus x1। जब डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना है तो आपको स्लोप का एक कंसेप्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्या होगा बताइए आप CD में, अगेन दैट इज द y2 2 minus 3 upon -3 एंड -3। एक चीज आप याद रखना, यदि आप ऊपर लेते हो y1 minus y2 तो नीचे भी लिखना पड़ेगा आपको x1 minus x2। जैसा आप ऊपर यूज करेंगे एंड सेम आपको नीचे लिखना है। तो 2 minus 3 is -1 and -6, so 1/6। तो here we observe that, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD and we know that if two lines are parallel then their slope is equal। तो इसका दोनों का स्लोप इक्वल है, सो इट मीन्स बोथ आर पैरेलल। तो राइट डाउन आप लिख लो इसे, सिंस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD therefore AB पैरेलल टू CD। आपको AB CD के पैरेलल हो गया। अब चलते हैं स्लोप ऑफ AD। लिखिए आप स्लोप ऑफ AD क्या होगा, स्लोप ऑफ AD सेम थिंग्स y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 आपके पास क्या है 2 minus -1 upon -3 minus -2। y2 minus y1 x2 minus x1। So 2 plus 1 upon -3 और आपका हो गया -3 plus 2, it will be 3 upon -1, this is equal to -3। तो आपको हो गया स्लोप ऑफ AD इक्वल टू -3। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भी आपको विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला होगा
आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आ गया स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू, क्या करेंगे स्लोप ऑफ बी सी? अब दोबारा देखिए, बी सी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्या होगा y2 बी सी के लिए? 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4, तो 3 अपॉन माइनस 1 माइनस 3। देखो दोनों का स्लोप फिर इक्वल आ गया। सो स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दिस इंप्लाइज आपका क्या हो गया? ए डी पैरेलल टू बी सी। समझ गए? ये आपका ऐसा क्वेश्चन था। हमने क्या देखा? अपोजिट साइड से पैरेलल है, इट मीन्स इट इज ए पैरेललोग्राम। therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। तो आपने समझ गया इसको। जब भी आपको विदाउट यूजिंग डिस्टेंस बोलेगा और इसको बताना है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, कुछ भी देगा, तो यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ द स्लोप ऑफ ए लाइन। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हो गया है क्वेश्चन। ये सब का आपको क्लियर होगा, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप इजीली स्लोप के बेसिस पे आप कर सकते हैं व्हेन पॉइंट्स आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस and angle between the x-axis and the line joining the points 3, minus 1 and 4, minus 2। 4, minus 2। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, minus 1 एंड 4, minus 2। अब क्या करेंगे? देखो आप, ये आपका एक्स एक्सिस है, वी सपोज दैट, एंड पॉइंट इज 3, 1। आपका यही पॉइंट हो गया। 3, 1 कहीं भी ले लीजिए, इसका एंगल निकालना है मुझे, तो 3, 1 एंड 3, minus 1 और दूसरा आपका 4, minus 2। आप इसको ऐसे ही रफली ले लो। आप ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एक्स एक्सिस एंड वी टेक 2 पॉइंट्स 3, minus 1 एंड 4, minus 2। अदरवाइज ग्राफ पे आप ड्रॉ करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं है। हमें निकालना है, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, ये एंगल क्या होगा। अब देखो सबसे पहले ये आप इसको P ले लो और Q, और इट इज द एक्स एक्सिस, एंड यू नो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। तो आप लिखो सॉल्यूशन में, वी नो दैट स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ पे 2 लाइंस है, एक तो आपका एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा आपका सेकेंड लाइन है आपका पी क्यू। तो एक्स एक्सिस 0 इक्वल टू M1C। हमने मान लिया कि M1 है। नाउ आप स्लोप निकालिए पी क्यू का। क्या होगा स्लोप ऑफ पी क्यू? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जहां भी लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन हो
तो आप यही कंसेप्ट लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 इज PQ में आ जाओ -1 माइनस ऑफ 2 अपॉन 3 ऑफ -4, सो -1 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 4 आपका आ गया -1, इट विल बी 2 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन -1 दैट इज -1। आ गया -1। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो आप, इसको आप लिख सकते हैं। इसे आप कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें बताएंगे इसमें आप। अब सो देयरफॉर एंड स्लोप डिनोटेड बाय tan थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू -tan π/4, क्योंकि आपका tan जो होता है π/4 1। अब यहां से माइनस हटाना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो आप इसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 45, इट विल बी tan 135। यहां तक आप लिखिए, ये आपका आ गया tan 135। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 135, तो आपके पास ये थीटा आ गया 135, तो आ गया एंगल बिटवीन द x axis and the this line is, because angle between x axis or line means slope of the line, because slope means line makes an angle theta with positive direction of x axis, and here we observe that this line makes angle theta with the x axis, so it is the slope of this, so यही आपका थीटा हो गया, that is the 45 degree, therefore x axis line makes 135 with x axis। ये आपका क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे ख्याल से आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और इसे घर पे एक बार जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो नेक्स्ट, अब चलते हैं हम इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 ट्राई योर सेल्फ आप खुद करेंगे। मैं अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राइट डाउन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th क्लास। आप लिख लीजिए इसे। ए लाइन पासेस थ्रू, लिखिए ए लाइन पासेस थ्रू किससे, x1 y1 and h comma k, x1 y1 and h comma k, if slope of the line is m, तो आपको क्या करना है, so that लिखो आप, क्या दिखाना आपको, k माइनस y1 m टाइम्स ऑफ h माइनस x1। ये आपका क्वेश्चन है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे गौर से देखें। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ए लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk, इट मीन्स देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, and if slope of the line is m, तो then we have to prove these things। अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखो आपका ये लाइन है जस्ट PQ, it is a line PQ, here we take x1 y1 and second point is P is the x1 y1 and Q is the h comma k and slope is m। तो लिखो here P x1 y1 and Q h comma k lie on line PQ, therefore आपका स्लोप क्या होगा बताओ, स्लोप ऑफ PQ आप बताइए क्या होगा,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने स्लोप का लिख दिया। और y2 PQ में आप आ जाओ, PQ k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, ये आपका आ गया दिस। बट स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन, स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन, सो पुट हेयर का क्या कर रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज m, तो आप क्या लिख सकते हैं, लिखिए इसे, therefore m इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, so k minus y1 equal to m times of h minus x1, hence proved। अब देखो यही लाना था आपको, जो आपके पास आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा इस पर कंसीडर करेंगे, देन यू कैन सॉल्व इजिली। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। हमने कुछ नहीं किया, स्लोप का कंसेप्ट लगा दिया और स्लोप m गिवन था, उसको हमने पुट किया, आ गया। जब भी दो पॉइंट्स गिवन होगा तो आप स्लोप का यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन, मीन्स डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो इस तरह के इस क्वेश्चंस को आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे। और अब मैं एक और क्वेश्चन करा के आज क्लास स्विच ऑफ करूंगा। एंड लिखो, एक क्वेश्चन और है, इफ 3 पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए आप लोग, इफ 3 points h, 0 h, 0 a, b and 0, k lie on a line, then prove that a by h plus b by k equal to 1। a by h plus b by k equal to 1, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसे कैसे करेंगे? आप देखो, बहुत सिंपल है, मैं हिंट कर देता हूं आपको। यू हैव टू टेक 3 पॉइंट्स a, b and c। a is h, 0, b is a, b and c is 0, k। because 3 points lie on line, so कोलिनियर हो गया, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी क्या लिखेंगे आप? b माइनस 0 अपॉन a माइनस h, एंड दिस इज इक्वल टू k माइनस बी अपॉन 0 माइनस a। ये आपका हो गया। सो दिस इज इक्वल टू b अपॉन a माइनस h इक्वल टू k माइनस बी अपॉन माइनस a। आप इसे लिख सकते हैं b माइनस के अपॉन a। हमने माइनस साइन नीचे का हटा दिया। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, आप इजिली इसे हटा सकते हैं। तो ये आपका, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर देंगे, ए बी इक्वल टू a माइनस बी और इंटू बी माइनस के, और इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। ए बी माइनस ए के माइनस बी स्क्वायर प्लस बी के, और इसे सॉल्व करके आ जाएंगे। तो ट्राई योर सेल्फ, इट इज द टाइम ऑफ द स्विच ऑफ द क्लास। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, I wish you all the best. Thank you. I will see you again with next video.